Hello students, hope you all are fine. So in this video today I am going to explain the new chapter in English, that is An Earth Day Carol. It's a very interesting chapter with a great message. Okay, it conveys a beautiful message that we all are responsible for our earth. We all have to save earth. If there is pollution or the problems we are facing today, we all, everybody, each individual is responsible for that. We have to improve ourselves. We have to bring changes in ourselves. That is what the chapter is going to teach us. Is it clear? So let us come to the topic, An Earth Day Carol. What does the title say? Earth Day, you all know. When do we celebrate Earth Day? Every year on 22nd April we celebrate Earth Day. Okay, and Carol. The chapter's title is An Earth Day Carol. Carol means song. Actually, we generally think कि carol means the songs, the religious songs that people they sing at Christmas. Okay, but no, actually, it is not the only meaning of carol. Actually, this word carol, it means dance और ए सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड जॉय. ओके, आप किसी की भी प्रेज के लिए जो सॉन्ग गाते हो, दैट इज कॉल्ड कैरल. अब हियर यू नो वी सेलिब्रेट सो मेनी फेस्टिवल्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स विद पॉम्प एंड शो. हम एंजॉय करते हैं, अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं. तो वाई डोंट वी सेलिब्रेट अर्थ डे द सेम वे वी सेलिब्रेट अदर फेस्टिवल्स. अर्थ डे तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी लिव. It gives us everything for our survival. Is it not true? है ना, ऐसा होना चाहिए ना. हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो इसीलिए द टाइटल एन अर्थ डे कैरल मीन्स एन अर्थ डे सॉन्ग. अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो सॉन्ग गाया गया, उसके ऊपर ही टाइटल दिया गया एन अर्थ डे कैरल. वी विल better understand it when I explain the chapter to you. Is it clear? Okay, now let us come to the writer. This play, An Earth Day Carol, it is divided into 5 acts, and it is written by Paula Thomas, right? And you know what? Let us know about the characters of the play. Narrator Ebenezer Litterbuck. There are 8 children 1 to 8. Native American boy, American girl, the speaker. Then we have Ghost of Earth Day Past, Earth Day Present, and Ghost of Earth Day Future. We have 3 ghosts of Earth Day Past, Present, and Future. It's a very interesting play. You will definitely enjoy and like it. See beta, as I told you, it is written by Paula Thomas. So this play is inspired by Charles Dickens' famous book A Christmas Carol. मतलब ideas have been taken from that book. A Christmas Carol आपने शायद नहीं पढ़ा होगा. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक. ए क्रिसमस कैरल एक प्ले है. इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. सो पॉला थॉमस, शी वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस. इंस्पायर्ड मीन्स शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड. उन्होंने पढ़ा होगा क्रिसमस कैरल एंड शी रियली लाइक दैट प्ले. शी गॉट द आइडियाज़ फ्रॉम दैट एंड देन शी रॉट दिस एन अर्थ डे कैरल. और जो क्रिसमस कैरल है ना बेटा, व्हेन यू गेट टाइम ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अच्छा है. उसका भी बहुत अच्छा थीम है कि वी ब्लेस बोथ आवर सेल्स एंड द वर्ल्ड व्हेन वी लिव इन ए जेनरस, कंपैशनेट एंड ओपन हार्टेड वे. ठीक है, व्हेन यू लाइक द कंपनी ऑफ अदर्स देन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. उसका जो कैरेक्टर था ना, उसमें भी यही है. एबेनेजर स्क्रूज एक कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल नेगेटिव इमोशंस रखता है. हमेशा बच्चे खेल रहे हो तो उसको अच्छे नहीं लगते, शोर पसंद नहीं है, चुपचाप रहता है, बड़ा कंजूस होता है. देन ही ऑल्सो is accompanied by 3 ghosts: Christmas past, ghost of Christmas present, ghost of Christmas yet to come. तो उसी स्टोरी से मिलती जुलती अर्थ डे के ऊपर पॉला थॉमस ने ये स्टोरी लिखी, एन अर्थ डे कैरल. यू विल डेफिनेटली लाइक इट. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. सो वी स्टार्ट विद एक्ट 1. Narrator. It was a day before Earth Day, and all through the town no litter was anywhere, not uptown or down. Means tomorrow is Earth Day and one day before Earth Day it is a scene setup. और पूरे का पूरा जो एरिया है बिल्कुल क्लीन है. रोड्स आर वेरी क्लीन. नो लिटर. लिटर मीन्स रबिश, कहीं गंदगी नहीं पड़ी हुई. नॉट अप टाउन और डाउन. अप टाउन का मतलब होता है रेजिडेंशियल एरिया,
part of a town where people live, mostly located away from the center of the city. And down मतलब downtown, business area. तो अपटाउन मीन्स जहाँ पे लोग रहते हैं, एंड डाउनटाउन मीन्स, डाउन मीन्स जहाँ पर मार्केट होता है, बिजनेस एरिया होता है. लोग कहते हैं सब कुछ क्लीन था. तो ऐसी जगह पर जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज एबेनेज़र लिटरबग, वो घूम रहा है. और जब वो घूम रहा है ना, उसकी पॉकेट में बड़ा गार्बेज पड़ा हुआ है. पॉकेट में से गार्बेज, किसी के रैपर्स वगैरह देखो नीचे निकल रहे हैं, है ना. एंड देन व्हाट हैपन्स, ही इज किकिंग ए कैन. जैसे कोई जूस का हो गया या कोल्ड ड्रिंक का कैन जो होता है ना, कंटेनर जो होता है, उस पर वो किक कर रहा है और चल रहा है सड़क के ऊपर. देन अचानक से वन चाइल्ड कम्स इन, सेज, हे एबेनेज़र लिटरबग, टुमारो इज अर्थ डे, द होल टाउन हैज़ बीन क्लीनिंग फॉर वीक्स, पिक अप योर गार्बेज. कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा एक वीक से गार्बेज को हटाया जा रहा है, रोड्स को क्लीन किया जा रहा है, एंड यू आर जस्ट डर्टिंग द प्लेस. देन एबेनेज़र, माइंड योर ऑन बीज़वैक्स, व्हाट डू वी पे स्ट्रीट क्लीनर्स फॉर? जस्ट सी द थिंकिंग ऑफ दिस बॉय. अब आपको एक देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, एबेनेज़र लिटरबग. लिटरबग उसके नाम के साथ लगा हुआ है. लिटरबग क्यों? लिटरबग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरबग? ए पर्सन हु केयरलेसली ड्रॉप्स लिटर इन ए पब्लिक प्लेस. यहाँ वहाँ फेंकता हुआ चलता है और गंदा करता है उस प्लेस को. ओके, सो क्या कहता है, माइंड योर ओन बीज़वैक्स. बीज़वैक्स, बीज़वैक्स का मतलब बिजनेस. तो ये एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, नॉट टू इंटरफेयर इन एनी वंस अफेयर्स. ओके, मीन्स अपने काम से काम रखो. स्ट्रीट क्लीनर्स को हम पे करते हैं या उनका काम है, दे विल क्लीन इट अप, वाई शुड आई पिक अप द गार्बेज. फिर एक और चाइल्ड आता है वहाँ पे, चाइल्ड 2, लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज बिजनेस. एबेनेज़र, दैट इज व्हाट अर्थ डे इज ऑल अबाउट. तो एबेनेज़र, अर्थ डे, अर्थ डे. बोथ चिल्ड्रन थ्रो देयर हैंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन एंड वॉक ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शंस. एबेनेज़र डजंट ओबे देम, और बिल्कुल परवाह नहीं करता, बड़ा गंदा सा रिएक्शन करता है, कहता है आई डोंट केयर, क्या होता है ये अर्थ डे वगैरह. और फिर दोनों बच्चों को लगता है कि जो एबेनेज़र का रिस्पॉन्स है इज़ नॉट गुड, तो दे बोथ गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, हियर्स एक्ट 1 इज ओवर. नाउ वी कम टू एक्ट 2. दिस सीन इज अगेन एबेनेज़र्स बेडरूम. नरेटर एंटर्स एंड ही सेज कि एबेनेज़र लिटरबग lay asleep in his bed. Sorry fellow, there was much to dread. देखो इसको राइमिंग की तरीके से बताया गया है. जैसे कोई आप इनेक्ट करते हो, नरेटर कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन देता है, तो थोड़ा उसको और भी इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसको राइमिंग दिया गया है, बेड, ड्रेड. ओके, सो जो इन दिस सीन व्हाट हैपन्स, ये एबेनेज़र लिटरबग जो है ही इज स्लीपिंग, एंड देन व्हाट हैपन्स, तो नरेटर बता रहा है कि वो सो तो रहा है, बट देयर वाज मच टू ड्रेड. टू ड्रेड मतलब कि कुछ अलग सा होने वाला है, समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन, टू बी अफ्रेड ऑफ. ठीक है, ड्रेड का मतलब क्या होता है, टू बी अफ्रेड ऑफ, जिससे आपको डर भी लगता है. अगर आपके सामने कोई भूत आ जाएगा तो आपको डर लगेगा ना, सेम वे. अब जो एबेनेज़र है वो भी सोया हुआ है ना. अब देखो, नाउ ही डजंट नो कि अब उसको किसको फेस करना पड़ेगा. तो अब कौन आता है, घोस्ट, घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट. हियर वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर बेटा, कि जहाँ पे अर्थ डे पास्ट, घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट और प्रेजेंट, ओके, जो ये वाले है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भूत आ गया. एक्चुअली क्या है, अर्थ इतना परेशान हो गई है, अर्थ खुद इतना दुखी है कि आई वॉज ग्रीन. ठीक है, इतना प्यारा नेचर था, ठीक है, फॉरेस्ट थे मेरे ऊपर बड़े बड़े से, ग्रीनरी थी. ठीक है, अच्छे से नेचर जो था इतना ब्यूटीफुल लगता था. लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया, पॉल्यूशन इतना फैला दिया कि जो अब मैं हूँ, अर्थ जो है, अर्थ कह रही है कि अब मैं वैसी नहीं रही जैसी मैं पहले थी. तो यहाँ पर जो अर्थ डे का घोस्ट है, प्रेजेंट और पास्ट, तो अर्थ हर सेल्फ इज कमिंग एंड टेलिंग. घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट का मतलब पहले अर्थ कैसी थी, वो अर्थ खुद अपनी कहानी बताने के लिए आई हुई है, तो इन द फॉर्म ऑफ घोस्ट. तो उसको घोस्ट का नाम दे दिया गया है, थोड़ा सा इसमें एक्साइटमेंट और ताकि बच्चों को लगे. ठीक है ना. ओके, वेल, घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट carries a leafy tree branch to Ebenezer's bed, leans over and taps his shoulder. तो उसके हाथ में क्या है, जो घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट है, एक लीफ है, लीफी ट्री ब्रांच है उसके हाथ में. ठीक है, और वो क्या करते हैं कि टैप्स का मतलब क्या होता है, हिट्स, टच करना. किसको, एबेनेज़र की शोल्डर्स पे टच करती है और क्या कहती है, राइज एंड शाइन एबेनेज़र बेबी, खड़े हो जाओ. तो एकदम एबेनेज़र सिटिंग अप विद अ स्टार्ट. अब कोई आपको पीछे से आके अचानक से कंधे पे आपके
आपको टच करेगा, हिट करेगा और आपको पता चले कोई भूत, तो वो भी एकदम डर के उठोगे ना आप, है ना। सेम एकदम सडन मूवमेंट होगी ना, उसी को स्टार्ट बोलते हैं। ये स्टार्ट का मतलब वो नहीं है टू बिगिन, शुरू करने वाला स्टार्ट नहीं है। इस स्टार्ट का मतलब है टू मूव सडनली विद अ सरप्राइज और फ्राइट, डर से उठना या किसी हैरानी से उठना। अपनी आईज को रब करने लगता है और कहता है हु आर यू? Ghost of Earth Day Past. I am the ghost of Earth Day Past. You are making a mess of the earth. You need a lesson. Come. Ebenezer gets out of bed and follows the ghost to a woodland area. Woodland area मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ फॉरेस्ट एरिया, लैंड अंडर स्टैंड्स ऑफ ट्रीज विद ए कैनोपी, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, ग्रीनरी हो। तो एबेनेजर कहता है वेयर आर वी? दिस इज ऑसम, क्लीन, ग्रीन। वाओ, हम कहाँ पर हैं इतनी सुंदर जगह पर? इट इज अमेजिंग। तो Ghost of Earth Day Past, we are in America in 1492. This is how our country looked before wasting and polluting became the ways of the land. Here, Native American boy and girl walk past and stop. तो what Earth Day Past tells कि देखो ये मैं ही हूँ। इतने साल पहले अमेरिका में 1492 में कितनी सुंदर थी मैं। I was so beautiful, पूरा का पूरा ग्रीन एरिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? वट इज द मीनिंग ऑफ द वेज ऑफ द लैंड? द वे द पीपल ऑफ ए प्लेस लिव। कि हुआ क्या, जब लोगों की ये हैबिट ही बन गई मुझे पॉल्यूट करना और गंदा करना, ठीक है, उससे पहले मैं ऐसी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, 1492 का जो चल रहा है टाइम, अर्थ उसको उसी पास्ट में लेके जाती है। एक बॉय और एक गर्ल वॉक पास्ट एंड स्टॉप। वॉक पास्ट मीन्स थोड़ा सा आगे निकल जाना, चेंज द पोजीशन, उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। देन नेटिव अमेरिकन बॉय, फादर सेज वी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ। देन गर्ल सेज इफ वी ट्रीट हर वेल शी विल रिवॉर्ड अस विद फूड एंड ऑल दैट इज गुड। बॉय एंड गर्ल एग्जिट। तो दोनों बच्चे एक बात बोल के जाते हैं कि पापा ऐसा कहते हैं, फादर कहते हैं कि हमें अर्थ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो अर्थ भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी। इट विल प्रोवाइड अस विद ऑल द थिंग्स वी नीड। अगर आप अर्थ को ही वेस्ट करोगे, स्पॉइल कर दोगे, गंदा कर दोगे, गार्बेज फेंकोगे, तो आपको अर्थ से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यदि आपको कुछ चाहिए तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो। नाउ घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट सेज all things here were pure and clean because people took care of the earth. This time was the best time because I was green and people, they were also caring. They took care of me. Now what happens? Ghost leads Ebenezer back to his bedroom and he says, wait for the next ghost. See you around. Ebenezer buddy, the friend, I am going now. Next ghost will come and teach you something else. Ghost exits. Exits means leaves. Now Act 3. Again the scene is Ebenezer's bedroom. Narrator comes and says Ebenezer was tossing and turning in bed, wondering where is the next ghost? What lies ahead? अब Ebenezer was thinking कि अब क्या होने वाला है? एक घोस्ट से तो मिलकर आ गया वो। Tossing means to move from one side to other. Sometimes what happens no? आपको नींद नहीं आती, आप करवटी बदलते हो ना, उसी को बोलते हैं tossing, to move from side to side. अब Ghost of Earth Day Present comes. He walks to Ebenezer's bed, leans over and takes the covers off. Wake up, sleepyhead. We have got to make tracks out of here. He beckons with his finger to follow quickly to a recycling center. Now what he does? आकर के वो एबेनेजर को जगाता है, उसकी जो चादर होती है उसको हटा देता है, उसके ऊपर झुकता है, leans over and then what he says, sleepyhead. What is the meaning of sleepyhead? A sleepy person. ठीक है, इनअटेंटिव पर्सन, जिसको पता नहीं है कुछ, अनअवेयर पर्सन। और उसे कहते हैं अब हमें यहाँ से फटाफट बाहर निकलना है। एंड ही बेकन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेकन्स? इशारा करना। मेक्स अ जेस्चर विद अ हैंड टू इंस्ट्रक्ट समवन टू फॉलो, कि अब हमें रिसाइकलिंग सेंटर चलना है। इज इट क्लियर? व्हाट इज रिसाइकलिंग सेंटर? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वेस्ट ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट किया जाता है और उनको दोबारा से यूज करने के लायक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेपर, ओके, ऑल दीज थिंग्स दे आर सेंट टू रिसाइकलिंग सेंटर। वहाँ पे पूरे का पूरा इनको ट्रीट किया जाता है, पूरे का पूरा वहाँ पे सेटअप होता है, सिस्टम होता है। एंड देन व्हाट हैपन्स? देन इट कम्स बैक, रिसाइकिल हो जाता है और हम लोग इसको रीयूज करते हैं। होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट हैपन्स? एबेनेजर को घोस्ट क्या कहता है अपने साथ चलने के लिए? एंड व्हाट एबेनेजर सेज, हु आर यू? देन घोस्ट सेज, आई एम द घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, फॉलो मी।
and they both start walking together to a recycling center. Now, the ghost of Earth Day present and Ebenezer both they reach to a recycling center and Ebenezer asks, "Why are we here? यहाँ क्यों लेकर के आए हो?" Then ghost of Earth Day present says, "Don't ask questions. Look, listen and learn." Means keep your ears open, eyes open and listen what they are saying. Try to learn. And what happens then? Here they see a group of children. They were standing and there was one speaker and he was saying something to the children. The speaker said, "The first Earth Day was on April 22nd, 1970. It is a day to enjoy our planet, learn about our planet and help our planet. What you all can do to help the earth? Just give your suggestions like." Okay, so the speaker asks the children ki what can be done. So they were asked to give their suggestions, their ideas, and now the children they start giving their ideas. So child 3 हमने क्यों शुरू किया इसमें? Because in this play 2 children, child 1 and child 2 were already present in act 1. Okay, now we are having child 3. So what the child 3 says, first thing can be done कि don't throw your cans, glass, plastic और papers. Recycle मतलब हमको यहाँ वहाँ ग्लास या पेपर या प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि इट कैन बी रीयूज्ड. Why to waste paper? Then child 4 gives the idea कि throw your garbage in a trash bin. Don't litter. यहाँ वहाँ मत फेंको, डस्टबिन में फेंको. जहाँ पर आपको वेस्ट मटेरियल फेंकना चाहिए वहीं फेंको. Right? Then child 5 don't waste water. Fix leaky faucets. लीकी मतलब जो फॉसेट्स क्या होते हैं? टैप्स, नल जो लीक कर रहे हैं उनको रिपेयर जल्दी से करवाना चाहिए और पानी को बंद रखना चाहिए व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ. इट इज़ अ हैबिट ऑफ मैनी चिल्ड्रन. नो व्हाट यू डू, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, यू आर डूइंग समथिंग, तो व्हाट यू डू, यू कीप योर टैप्स ओपन. तो यू शुड टर्न द वाटर ऑफ, उसको बंद करना चाहिए. एंड ऑलवेज यू शुड यूज बकेट्स टू टेक बाथ रादर यूजिंग showers. ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. Then child 6 says कि walk, use the bus or carpool. Energy is precious. Turn off lights and turn the heat down. Use it and we will all lose it. What is the meaning of carpool? Carpooling means type of car sharing. So, okay, this is journey in a single vehicle when one arrangement is made between people. कि अगर रेगुलरली आपको कहीं जाना है तो लाइक टेकिंग टर्न्स. इफ़ यू ऑल हैव टू गो टू वन प्लेस तो डिफरेंट इंडिविजुअल व्हीकल्स ले आने से अच्छा होता है कि आप उसको शेयर करके जाएं, ताकि अकेले जाओगे तो एक सेम डिस्टेंस को कवर करना है और आप इतना सारा फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, डीजल वेस्ट कर रहे हैं. तो आप अगर 3-3, 4-4 लोग इकट्ठा शेयरिंग करके जाते हो तो इससे आप क्या करते हो? पॉल्यूशन भी कम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और आप पैसा भी सेव करते हो, अपनी एनर्जी को भी सेव करते हो. हम अब पेट्रोल क्या है बेटा, डीजल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना एनर्जी का. इजीली हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते. ओके, तो हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. तो कारपूलिंग का मतलब होता है कार शेयरिंग कर लेना. एंड ओके, सिंपल लिखा है, यूज़ इट एंड वी विल ऑल लूज इट. इसको ठीक से यूज़ करो वरना टाइम ऐसा आएगा कि हम नोबडी विल हैव, किसी के पास बचेगा ही नहीं, एनर्जी ख़त्म ही हो जाएगी, रिसोर्सेज ख़त्म ही हो जाएंगे. देन चाइल्ड 7 सेज reuse your shopping bags, plastics and aluminium foil. Always try to use things more than once. यूज़ एंड थ्रो थिंग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. अब आप लोग जैसे ये डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करते हो, पेपर के जो कप्स होते हैं ये हार्मफुल भी होते हैं, इनके अंदर वैक्स की कोटिंग होती है. प्लास्टिक में आप प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं डिस्पोजेबल, दे आर ऑल्सो ये यूज़फुल तो नहीं है ना, यूज़लेस हैं वो बिल्कुल, क्योंकि हार्मफुल होते हैं. वो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ लेकर के आ जाते हैं. तो इट इज़ बेटर कि हम इन चीज़ों को यूज़ ना करें. ओके, हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हम रीयूज़ कर सकें बाद में. जैसे एल्युमिनियम फॉइल, आप स्टॉप यूजिंग दैट, आप उसकी जगह एक क्लॉथ का कोई नैपकिन यूज़ कर सकते हो, उसको वॉश कर सकते हैं हम बाद में, है ना. देन चाइल्ड 8 सेज रिसाइकिल योर टॉयज, बुक्स एंड क्लोथ्स, गिव देम टू चिल्ड्रन हु नीड देम. हम क्या करते हैं, बुक्स पुरानी हो गई तो नहीं ले ली, बल्कि आपको शेयरिंग करनी चाहिए. मान लीजिए आप एक क्लास से यू आर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, 6th क्लास में जा रहे हैं, 7th में जा रहे हैं, तो अपनी बुक्स को किसी और बच्चे को दे दो और
खुद भी अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप उस बच्चे से लो जो आपसे एक क्लास आगे है। तो दिस वे आप शेयरिंग करके क्या कर सकते हो, पेपर को बचा सकते हो। बिकॉज टू मेक द बुक्स वी नीड पेपर, और पेपर के लिए वी हैव टू कट फॉरेस्ट, ट्रीज को काटा जाता है। इससे हमारा एनवायरनमेंट में क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है। तो हम लोगों को शेयरिंग की हैबिट होनी चाहिए और केयरिंग की हैबिट भी होनी चाहिए, राइट बेटा, रिसाइकलिंग करना चाहिए। देन नाउ व्हाट सेज एबेनेज़र नाउ, वो सारे बच्चों की बातें सुनता है, कहता है यस दीज चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, वट एवर दे आर सेइंग आई एम नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस वे वी कैन मेक अ बिग चेंज। हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। नाउ द घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, ही टेक्स एबेनेज़र बैक टू हिज बेडरूम। और वहां पर क्या कहता है उसको कि नाउ वेट एबेनेज़र, द नेक्स्ट घोस्ट विल कम टू शो यू वाई। अब वो तुमको आके समझाएगा भी कि तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है। जो बच्चों ने कहा ये सब की करना चाहिए, तो नेक्स्ट घोस्ट विल कम और थोड़ा सा तुमको और कुछ दिखाएगा। नाउ दिस घोस्ट लीव्स। अगेन एक्ट 4 व्हाट हैपेंस, एबेनेज़र्स बेडरूम। फिर नरेटर आता है कि एबेनेज़र वेटेड, कुड ही नॉट गेस, ही वाज अबाउट टू सी वन ह्यूज मेस। अब उसको पता नहीं है, एबेनेज़र डजंट हैव एनी आइडिया कि जो नेक्स्ट घोस्ट है वो उसको क्या दिखाने वाला है, कि पता नहीं वो क्या, व्हाट ए बिग मैस he is going to see. Well, ghost of Earth Day future goes to Ebenezer's bed, taps his shoulder and walks away. Ebenezer, hey wait, who are you? He jumps up and runs after the ghost to a vast wasteland. They stop to look around. अब ये वाला जो नेक्स्ट घोस्ट आता है, जो अर्थ फ्यूचर वाली अर्थ जो होती है, उसका जो घोस्ट होता है वो कहाँ लेके जाता है एबेनेज़र को, एक वास्ट वेस्टलैंड में। What is the meaning of vast? बहुत बड़ा, huge, and wasteland means ऐसा एरिया that cannot be used for growing plants और crops, जहाँ पर कुछ भी आप ग्रो नहीं कर सकते, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जस्ट वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब बिल्कुल बेकार लैंड, खराब लैंड। तो वास्ट वेस्टलैंड मीन्स अ ह्यूज, बाउंडलेस, इमेंस एरिया that cannot be used for growing or buildings. So ghost of Earth Day future says कि I am the ghost of Earth Day future. I live here where there are no living beings, only garbage and pollution. कि देखो मैं फ्यूचर का अर्थ हूँ, अर्थ फ्यूचर की अर्थ हूँ मैं, कि आने वाला टाइम ऐसा ही आएगा, इफ़ द पीपल डोंट टेक केयर ऑफ मी, दे डोंट टेक केयर ऑफ द अर्थ, और पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, ओजोन डिप्लीशन होता रहा, ठीक है ना, देन व्हाट वुड हैपन वन डे, ये टाइम आएगा। एबेनेज़र he gets scared, कहता है no it cannot be, I am out of here, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। then he runs to hide under his blanket. Now what happens? Act 4 over. Act 5, this is the last act of the play and the concluding stanza also. Now what happens? The scene is Ebenezer's bedroom. Narrator क्या कहता है कि Ebenezer rose with just one thought in his head, it's Earth Day, by golly I am not staying in bed. What he says, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, अब वो 3 घोस्ट से मिल चुका। Now he gets up, he wakes up, और उठने के बाद वन डे, वन थॉट ओनली, इट इज़ इन हिज हेड, इन हिज माइंड, कि आज अर्थ डे है और मैं मतलब बाय गॉली मीन्स, बाय गॉली बेटा ये एक एक्सप्रेशन है कि ही वॉज सरप्राइज्ड, ओह अर्थ डे। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, जॉली नहीं है, ज नहीं है, ग, गॉली। गॉली इज अ प्रोनाउंसिएशन, कि ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड, बहुत खुश भी था कि अच्छा अर्थ डे है। नाउ व्हाट हैपन्स, ही जंप्स अप, he runs to a group of children at the park, और वहाँ पे जाके सबसे क्या कहता है, Happy Earth Day everyone. Now the same child who meets him in the Act 1, ठीक है, he says you Ebenezer, are you wishing? तो Ebenezer क्या कहता है, Yes it is me, I have changed. Are you going to stop littering and polluting? Yes. Are you going to follow the 3 R's and always reduce, reuse and recycle? Yes, yes. Are you going to live in the spirit of Earth Day and take care of the world? Yes, yes, yes. वो बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम अर्थ की केयर करोगे, अर्थ को रिस्पेक्ट दोगे, पॉल्यूशन नहीं फैलाओगे, गंदगी नहीं फेंकोगे। Ebenezer says yes, yes, yes. Now I am totally changed. Okay, then what happens? लास्ट में सारे बच्चे मिलकर के they start singing a song. जैसे आप लोग गाते थे ना, जैसे We wish you a Merry Christmas. The same tune they start singing We wish you a happier day. और इस तरह से दे स्टार्ट सिंगिंग, दे एन्जॉय टुगेदर एंड दे प्रॉमिस विद ईच अदर कि वो अपनी मदर नेचर को कभी भी गंदा नहीं करेंगे। दे विल नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर,
and they totally change. Okay, that's all about the play. Hope you all have understood. In case of any doubt, you can ask in the comment box. Your queries will be answered. And you know, this play, it conveys a beautiful message that we all should take care of the earth. We human beings, we are the only one who are polluting the nature. हम मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं. वी शुड स्टॉप यूजिंग द थिंग्स विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, पॉलीबैग्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें क्या लेके जाना चाहिए अपने साथ? एक थैला लेकर चलना चाहिए, है ना. क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट टू बाय समथिंग. ओके, टैप्स वगैरह को टर्न ऑफ कर देना चाहिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज़. इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने इफ़ यू आर सिटिंग इन वन रूम, दूसरे रूम में जा रहे हो तो स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स. थोड़ा सा हमको केयरफुल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए. देखो ना, अपने घर में जहाँ हम रहते हैं उसको साफ रखते हैं ना. हमारा घर कहाँ है? इस अर्थ के ऊपर ही तो बना हुआ है ना. अगर आप अर्थ को क्लीन नहीं करोगे, सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं करोगे, तो क्या होगा? एक दिन गंदगी घर के अंदर भी तो आएगी ना. सो वी ऑल शुड लर्न दिस थिंग. ओके, सो grow a tree, plant a tree, and take a pledge to keep your surroundings clean. That's all, children. Be happy. Take care. Bye bye.